क्या इतना अच्छा काम करती हूँ वो कभी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, है ना? एक गलती अगर होती है उसमें तो मुझे 10 बारी सुनाते हो आप। हेलो। हाँ सर, मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरा है ना वो फेसबुक वाला आईडी पासवर्ड जो है साइन आउट हो गया था। हाँ हाँ, वो तो मिल गया था मुझे, नरेंद्र सर से लिया था मैं। वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि वो इन्फो वाले आईडी से होगा कि MIPS से होगा ऐसा। ठीक है सर। ठीक है सर। चार्जर है क्या सी वाला आपके पास? नहीं मैडम, आई डोंट हैव इट। आई डोंट हैव दिस चार्जर। ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है सर, जो भी बोल रही हूँ ना आपको। हाँ, कितने मजे लेते हो यार। भरत से ले लो, भरत के पास है। नहीं, हेडफोन्स ये मैडम के पास भी होंगे। तो ये आपके छर रहे हैं, उनके पास नहीं है। ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ मैं ना। हम्म। दोनों पे किया है सर मैंने, और GD पे भी किया है, उस पे भी किया है।
very good afternoon to one and welcome to the National International Webinar Series #Modern Talk. Today we will have the modern talk on digital data tsunami in India, and the speaker of today is Mr. Narendra Sen, founder and CEO at Red Bank Data Center Private Limited. A very good afternoon to one and all, and welcome to the National Webinar Series #Modern Talk. Today we will have with us Mr. Narendra Sen, CEO of Reg Bank Data Center Private Limited. Today's topic is digital data tsunami in India.
Yeah. Hello, sir. I was calling you. Yeah. Hello. How are you, sir? Good. Sorry. Uh, yeah. So, very warm welcome to the national webinar series #Modern Talk, and Thank you. thank you, sir, for joining us today. Uh, before moving further, I will just take a while to because our session is live, also Facebook Live, also on our Facebook page. Okay. Yeah. So, are we live or? So we are on Zoom also, and the Zoom is on Facebook Live. So Okay. this meeting, yeah, it is in two-way means. Okay. No, it's already started. So let's discuss. Sir, before moving further, I will take a while of yours. Uh, Yeah. yeah. So today, a very warm welcome to everyone, and welcome to the national webinar series #Modern Talk. Today we have with us a very renowned Mr. Narendra Sen, CEO and founder of RegBank Data Center Private Limited. We also have with us Dr. Puneet Kumar Dwivedi, Group Director, Modern Group of Institution, Indore. And welcome to all the participants, those who have joined us. Uh, Today we are going to discuss on a very interesting topic, that is digital data tsunami in India, and we will listen it from Mr. Narendra Sen that how data is important and how the world of data is moving towards a new era. So before moving further, I would like to give a brief introduction about our organization. So for that, I need to share the screen. I hope my screen is visible now. Yeah. Modern Group of Institution is a leading group of institution in Indore affiliated to RGPV Bhopal, DAVV Indore and CBSE New Delhi, and approved by AICT New Delhi, NCTE and PCI New Delhi. Modern Group is imparting quality education in the field of pharmacy, management, commerce and education. We offer more than 8 courses in these fields, which includes B Pharma, M Pharma, D Pharma, BBA, BCom, BEd and MBA. Modern Group encompasses two leading pharmaceutical industries too, Modern Lab and Nandini Medical Laboratories Private Limited. Modern Laboratories was established in 1998 and Nandini Medical Laboratories was established in 1998. Both gained prestigious acclamation in All India rating of pharma industries. We also have Modern International School, which was established in 2013. We believe in innovation and entrepreneurship, and hence we introduced MP's first pharma incubation center, that is Modern Incubation Center, in the year 2019, sponsored by MSME Government of India. Recently, we have received World Book of Record UK and World Record Academy USA for making largest human image of medication capsule. Also, we are recognizing participating institute of Unnat Bharat Abhiyan in association with IIT Delhi and MHRD Government of India. The institute also have Modern Innovation Council, which is an institute innovation cell by MHRD Innovation Cell. So in this pandemic period, we get an idea of knowledge sharing and acknowledging the knowledge and enlighten people through Modern Talk. We have already done 42 webinars in this COVID period, and all the webinars are majorly from different field and majorly related to the post pandemic era, to discuss about the post pandemic era. So before moving further, I would like Dr. Puneet Kumar Dwivedi, Group Director, Modern Group of Institution, to give to welcome our guest. Thank you, ma'am. It is matter of pride to have a very renowned personality from data, and the very important person I know since long, founder and CEO of RegBank Data Center, Mr. Narendra Senji, very well-known name in startup community, and his struggle is also very well known. And I have seen his growth
and I witnessed that. And today, in this today's arena scenario, when startups are now everybody is discussing about the startups and people are doing, Indore is also growing like a great startup hub. People like Mr. Narendra Sen are doing great in this Indore ecosystem, and they have created a sound ecosystem for budding entrepreneurs and startups. On behalf of Modern Group of Institutions, on behalf of our Chairman Sri Anil Khariaji and Vice Chairman Sri Shantanu Khariaji, I welcome Mr. Narendra Sen ji in Modern Talk, hashtag Modern Talk, organized by Modern Group of Institutions. I welcome you, sir. Thank you. Thank you very much for inviting me here, and I'm excited to talk about the story and the journey. And congratulations to you in the Modern. I've seen after you joined a lot of new initiative I have taken in this group. Earlier group we are connected, and before that, so it's been a long journey for both of us. Yeah, thank you so much, sir. Thank you, Dr. Puneet Kumar Dwivedi, sir, for your kind words. Now, before moving further, I would like to give a brief introduction about our guest, Mr. Narendra Sen. For that, I need to share the screen. I hope the screen is visible now. Yeah. Yes. Mr. Narendra Sen grew up in a small village in Madhya Pradesh and used to visit Indore during vacations. He wasn't exposed to computers and technology even after school, but during vacations, he used to work at photocopy shop while working. He used to use frequent cyber cafes for taking printouts, and this is when he opened up to computers. Fascinated by this new world, he asked if he could help out, and he was a good enough hustler to get in. From working at a photocopy shop to setting up a data center in Indore, thus began Narendra's journey with computers, and he started working with the cyber cafes. Starting out with very basic stuff, he kept exploring at HTML, caught his interest. He used to spend a lot of time around computers and saw people dubbing with websites, and he realized it wasn't that hard. He started learning more and more until he could build a website on his own, and he got a project for rupees 1600, and that was a powerful event of his life. He went on become reseller for web hosting, where he found his way to make a good sum of money for him to sustain and set up a company. This was the stepping stone for Examable, which is into web development and online management. One of his one of the very few services provider in Indore back in mid 2000s, Narendra managed to grow his business and create employment. The company scaled up enough and was strong enough to have its own data center, and this is how RagBank came into existence. In the middle 2012, RagBank provides server hosting services with high performance, security, email stability, and control. Along with dedicated hosting, RagBank also provides managed hosting and collection services with nearly 2,500 servers capacity in foot space of 10,000 square feet. RagBank boasts of being one of the fastest growing web and internet service hosting infrastructure in India. The real estate costing is very high in cities like Bangalore, and hence setting up the data center in Indore makes a lot of sense, says Naren sir. So on behalf of entire Modern Group and Modern Family, I feel honor to welcome you, sir, to the National International Webinar Series hashtag Modern Talk. Now, I would like you to start the introductory talk on the topic. Over to you, sir. Thank you very much. It's an interesting presentation to see all the journey of my own. Some of the things, some of the thoughts I even forgot, but now I got an entire picture where I started and where I am right now. Thank you very much for building such a wonderful presentation. So now I would like to start your introductory talk on the topic. Sure. Yeah, right now we have 96 participants with us, and it will increase because it takes time to join. So it will increase. Okay. Yeah. Over to you, sir.
So it will be a question answer, or should I continue talking about the journey, or You how do can you give want? an introductory talk on the, about your journey for 30-35 minutes. And after that, we will start with the question answer session. Okay, all right. So thank you everyone, and I'm excited being here. And yes, it took long to reach here, um, but it was exciting. A lot of ups and downs I have seen, but those are learnings. So whenever we have some kind of failure, um, I have some kind of failure, I treat as a new opportunity. So I'll share my story. Hope you will find some of the things relevant for you and implement. And so I started as mentioned, that in a school time, started working on photocopy shop to understand internet cyber cafe and learn HTML designing in 2006. Um, then I developed my interest toward the internet, and that time is like website and other things was not popular because Facebook was not there in India at that time. So it's hard to sell that what is website and what is not. But I started with building my first website. I got first contract of 1600 rupees to design and host their website. When I finished this in cyber cafe, I didn't had a computer at home. But that's a part of life. You generally, we all are coming from the background, like our 70-80% population lives in villages, and we are all are coming from them, or our forefathers is coming from them. So some of the resources you might not have at the time when you start your journey, but you should start somewhere. Don't worry. Say if you want to be in the industry of space or in the industry of aeroplane, I always say that you should start flying drones, and gradually you can enter into the space industry or flying industry. So start somewhere. Starting is a great thing. So I started learning myself how to design website and started selling domain and hosting. Quickly, I grew up that business. I got 4,000 customers, and in and around Indore, door to door website ले लो, website बनाता हूँ, and something like that. I had only cycle bike. So through cycle I go there, park कहीं दूर करता था, फिर जाता था अंदर, कि cycle से जाओ तो लोग खरीदते नहीं थे. So that kind of things I did, which is relevant, not any gray side or any unethical things, but positive things. Um, I got a lot of support from my customers, and whenever I start anything, I start with friends and family. My first problem I started solving with the friends. Can you buy this? If he buys, then anybody can buy. But if it goes wrong, my friend will never say in the market that he did wrong or he ruined my investment. So I started with friends and family. Anything new, and from till date, if I start a new product, I'll start with friends and family, and then I sell to them first. Anything goes wrong, they give a feedback, they improvise, and things go beyond. So always remember, friends are going to help you now and then. So make a good friends. That is very important. So, and the learning failure is nothing. Got a lot of failure, but it's fine. Like it's a part of life. Ultimately, what we are doing, learning new things daily. So move fast, break things. What Facebook motto was, and it give a lot of insight. When I hear this motto from Facebook in 2007-8, I didn't get it actually. Move fast, break things. What it means, break things. You break everything, not like that. So you just focus on move. How fast, how slow, that doesn't matter, but you started moving. So move is the first move. And if you are solving a bigger problem for the world and there is a rules and regulation coming in between, so you have to break it. Not unethical. Don't start breaking everything, like getting into the legal battle. I'm not saying in that word. My mentors are books, videos, motivation. Nowadays, a lot of videos, a lot of you can learn whatever happening in US and the West and anywhere in the world. You can learn from your mobile, and the data is cheap in India. So parallel, I'm sharing some thoughts like 9 cents is per GB cost in India, which is 80% cheaper than earlier 5 years back, and that is the driving the data tsunami.
in 2007-8, when I started, only 50 million people are online in India, and now 560 million people are online. So that time I decided, I used to outsource my servers to US based data center, and that time like, okay, रात भर जगो, सर्वर को ठीक करो, दिन में बेचो, ऐसा चलता था और मजा आता था. मतलब 50-100 रुपए पर सेल कमाते थे, बट मजा अलग आता था उसका कि वी आर डीलिंग विद. एंड अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, अभी भी नहीं है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता. दे अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो समझा दो, खत्म बात. सो डोंट वरी अबाउट एनी लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट हैडल कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया. नथिंग लाइक दैट. Then I started like, okay, selling a US based server to Indian customer. Then I decided, why not set up my own data center in India? I got this thought. Always you'll have a thought in the same direction, same industry. So see the journey. I started with Cyber Cafe. I started first web designing, and then hosting is a part of web designing. Then I learned that hosting is more interesting than designing. Why not do hosting? And I got a 4,000 customer. Then I keep engaging in involving in that industry, and it took 3 years to understand the industry. It is not about immediately I change and I become a data center master in India or like that. No, it is a long journey. In the school time I get a direction. So whenever you start something, you'll get a direction. If you want to be a space scientist or do want to Elon Musk or anybody, you have to start in one direction, and gradually in 7-6 or any time, it's depend on your speed, how fast you go, but you'll reach there. Don't worry, all the obstacle will come. So in 2006 to 10, I got to know, okay, I am good at this. I can build my own data center. So I put a first server in my office building, and gradually I'll move all the servers. I got 100 plus servers in a short span of time. And then I realized I should build a data center in a bigger way, as an actual big data center. Then the obstacle are it. Then I got to know it required 100 crore at least to set up a data center. And that time, 2012, I didn't have that much money. I have a minimum lower. I thought it's not required. I already have servers, everything. So I don't need a lot of money. But then I realized if you want a A-class infrastructure, you have to bring power. Power, not a single grid, 2 grid power. Because if one fails, the another one should be there. Because data center cannot be down for a second. So you have to have redundancy on the power. And India challenge, you'll get a power, but not redundant power. You'll get fiber, but not redundant fiber. You'll get a land, but not power is that land. So जमीन है हमारी से एयरपोर्ट रोड पे, और वहाँ पे पावर है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं. अब उस पावर कंपनी को मैंने बोला कि ये लाके दे दो, हम ले लेंगे आपसे. तो बोलते हैं कि इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो पहले 25 करोड़ आप दो, उसके बाद दे देंगे हम आपको. So those kind of challenges I see, and I see it's a big problem, and India is growing beside. So we have to solve, and these data centers will come to India. That time in 2010, it's been like 10 years now, still trying to solve that's the same problem. But in there, then I realized, okay, this is the problem, and if I can solve it, it will be solve the country's bigger problem. Money will be not always motivation. Money is fine to stable your day-to-day thing, but the problem which you are trying to solve for a people. That's why whenever people see the big guys or any entrepreneur say कि उनका vision ये है to solve the common problem, create a platform and all those things, we generally don't get it, because यार पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे, एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है टाइम से, और बेसिक्स के लिए हम लोग फाइट करते हैं इंडिया में, और ये बात कर रहे हैं विजन प्रॉब्लम सॉल्व करने की, पैसा किधर है? तो कार कैसे आएगी या हम लोग लाइफस्टाइल अच्छी अपलिफ्ट कैसे करेंगे? सो उसका सेंस ये है कि हम लोग जब बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो जिसके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो हमें पैसे देता है. तो प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसलिए वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, और जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें. तो ऑब्वियसली तुम्हारा लाइफस्टाइल तो अपनी लिफ्ट हो रही है. अभी कितना पैसा कमा के क्या करोगे, पर प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है. लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं काम करने के बाद भी बहुत हम्बल होते हैं, आपको थैंक यू देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, और ऑल दोस थिंग. सो काम करते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, और वही ग्रेजुअली, छोटी हो बड़ी हो, डजंट मैटर. प्रॉब्लम है, अगर आप एक के लिए सॉल्व कर रहे हो और अगर वो छोटी है तो उसको स्केल कर दो ग्लोबल लेवल पे, उसको हर जगह ले जाओ उस प्रॉब्लम को. सो इसको बोलते हैं डबल डाउन करना. सो हम लोग हमेशा फोकस करते हैं कि मेरी एक्सपर्टाइज एक्स है, उस एक्स को डबल डाउन करो. यूएस में एक टर्मिनोलॉजी है डबल डाउन, कि आप उस पे और अंदर घुस जाओ और उसको 10 गुना स्पीड करके. सेम जब मैं वेबसाइट बनाता था, एक वेबसाइट 1 महीने में बनती थी और कस्टमर से 5,000 रुपए मिलते थे,
और महीने भर में मैं 15,000 जेब से दे देता था। फिर मैंने सोचा कि यार एक वीक में एक बनेगी तो अब प्रॉफिट में होगा। फिर मैंने 3 दिन में एक बनाना पड़ी, तो उसको डबल डाउन बोलना पड़ता है कि एक दिन में एक बन सकती है क्या, दैट वाज माय टारगेट, देन आई कैन अर्न 10x मनी। सो इसको बोलते हैं डबल डाउन करना। देन आई स्टार्टेड वर्किंग द हाउ टू गेट 100 करोड़। या तो प्रोजेक्ट छोड़ दो कि पैसे नहीं है आपके पास में, या करो परस्यू। तो आई डिसाइडेड वर्स्ट केस क्या है, ट्राई किया, नहीं ट्राई किया तो वो सबसे बड़ा फेल्यूर था। सो आई गिव अ ट्राई, मैंने बोला ट्राई तो करेंगे, बिकॉज द प्रॉब्लम इज देयर एंड एनीबडी लाइक किसी न किसी को तो सॉल्व करना है। सो आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन दैट। आई गॉट अ ग्रेट सपोर्ट। सो फर्स्ट आई फिगर इट आउट कि ओके इसके इस प्रोजेक्ट में क्या लगेगा, पावर लगेगा, पावर एमपी में एमपी भी देता है, लैंड चाहिए तो लैंड ठीक है, पर प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, परमिशन से एक ऑब्स्टिकल है, फाइबर एक ऑब्स्टिकल है। देन सारे पीसेस को जोड़ा, टीम भी चाहिए जो इसको ऑपरेट मैनेज बनाएगी। देन रियलाइज करा एक एक करके उन सारे ऑब्स्टिकल को चेकबॉक्स में बना दिया कि ओके पावर गवर्नमेंट, लैंड गवर्नमेंट, फाइबर गवर्नमेंट, वी कैन आस्क गवर्नमेंट विल हेल्प। तो मेजोरिटी पार्ट गवर्नमेंट था। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद गवर्नमेंट। आई पिच गवर्नमेंट दैट अगर हम डेटा सेंटर पार्क बनाएंगे तो ग्लोबल कंपनीज यहाँ आएगी और डेटा सेंटर बनाएगी, जिससे स्टेट को फायदा होगा, आपको फायदा होगा, एज अ गवर्नमेंट टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, इंडस्ट्री के लोग आएंगे, मेरे कॉम्पिटिटर आएंगे तो वो भी पूछते हैं कि तुम्हारा क्या फायदा, व्हाई यू आर डूइंग दिस। सो विजन ये था कि मैं स्टेट के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए भी कर रहा हूँ, बट मैं बहुत छोटा हूँ एंड आई एम माय कॉम्पिटिशन। आप कोई एक बड़ा बेनिफिट कर रहे हो जिससे उसकी कॉस्ट 100 करोड़ की 50 करोड़ हो सकती है, और एंड यू आर शेयरिंग दिस टू योर कॉम्पिटिशन। So are you fool? So I mean to say like okay, I have nothing. जीरो से चालू हुआ तो जीरो पे आ जाएगा, फिर जीरो से चालू होगा। So लूज करने के लिए कुछ नहीं था। तो I said okay, I'm okay with inviting my competition, but I will have a small space. My competition, my customer target is different. I'm targeting retail customer, छोटे छोटे customers को सर्व कर रहा था। तो मैंने कहा ये बड़े आएंगे तो 100 करोड़ लगाएंगे तो उसके कस्टमर अलग होंगे, एंटरप्राइज होंगे, बड़े ब्रांड्स होंगे, मेरे छोटे छोटे कस्टमर स्टार्टअप, मिड साइज कंपनीज, SMBs, फाइन। Then you get that. The IT secretary that time, he liked the idea. He asked me to give a presentation. I gave a presentation. He connected me. कि let's connect with industry. अभी आपके कनेक्शन आपको कोई नहीं जानता, आप कहीं से नहीं आए हो, अब आपको इंडस्ट्री में कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो लोग 2000 करोड़ का डिप्लॉय करके बैठे, ये तुम्हारा मेल तो क्या कॉल को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर नथिंग। देन आई अप्रोच थ्रू लिंक्डइन टू देयर टीम एंड आई सेड गवर्नमेंट ऑफ MP would like to meet you guys. If you are coming, we are coming over the data center park. I am advising government, and if you're interested, let me know. And these are the value. एक पेज बनाया लिंक्डइन पे, रात भर बैठ के सबको डाला, 50-100 लोगों से 25 लोग आ गए वहां पे मीटिंग में गवर्नमेंट के साथ नेक्स्ट डे। वो 25 लोगों ने LOI दे दिया गवर्नमेंट को, yes we are interested if you are doing so, because this is the fundamental problem of the industry. And dumb, like गवर्नमेंट को मजा आ गया और प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। सो हाउ आई ब्रिंग द कंट्रीज फर्स्ट, accidentally bring countries first data center park, and that helps me to get visibility. So मेरा फायदा नहीं था, पर्सनल फायदा क्या है, कुछ भी नहीं है। पर्सनल फायदा ये है कि आपका डेटा सेंटर बन जाएगा, बट गवर्नमेंट को हेल्प करके या इंडस्ट्री को हेल्प करके कोई बड़ा वो बेनिफिट नहीं था, और मुझे चाहिए भी था, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर हाईलाइटिंग एंड सपोर्टिंग आवर स्टेट। बट मीडिया ने उसको पिक किया, जो हमारी डेटा सेंटर इंडस्ट्री, एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन मोनाको। सो फ्रांस में मुझे इनवाइट आया कि यू हैव टू टॉक अबाउट योर डेटा सेंटर पार्क इनिशिएटिव व्हिच यू डिड फॉर द गवर्नमेंट। तब मैंने बोला ठीक है आ जाएंगे। सो मैं चला गया, और व्हेन आई सी इंडस्ट्री के सारे, डेटा सेंटर इंडस्ट्री के सारे लोग आए हुए थे, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, आई लर्न व्हाट दे टॉक, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। आप सारे लेक्चर सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि व्हेनेवर आई एम शेयरिंग माई लाइफ एक्सपीरियंस, और वो सारी चीजें जो आपकी लाइफ को एड वैल्यू करेगी। वैसे ही सारे लोग ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाके अपने पूरी लाइफ शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वहां से आप सीखते हो। तो मेरा लर्निंग एटीट्यूड है कि प्रॉब्लम छोटी हो, आप लोगों से भी लर्न करूंगा, मैं भी कुछ सिखा के जाऊंगा। हर आदमी से किसी को अच्छा चीज सीखने को मिलती है, बुरी चीज मत सीखो तो अच्छी बात है। सो आई स्टार्टेड दैट, एंड आफ्टर दैट आई गेट keep connected with industry. Everybody likes my idea because I did first time in the industry shared economy model, जहाँ पे गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन, इमर्जिंग मार्केट में हम लोग इंडिया आते हैं, इमर्जिंग मार्केट में परमिट्स बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड सिंस डेटा सेंटर नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पावर कनेक्टिविटी, फाइबर कनेक्टिविटी, ऑल दोस थिंग्स,
are way expensive, and it is not only India, globally यही trend है. So how to solve this? So you have to strategically educate government about the initiative and make them convinced and be transparent that I have no personal intention and there is nothing wrong about you. It will not harm your image as a IAS officer. को क्या लगेगा कि यार ये पता नहीं फंसा नहीं दे आके कुछ करप्शन नहीं हो जाए, पॉलिटिशियंस को लगेगा पता नहीं नई चीज है, समझ में नहीं आएगी. तो देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड. सो यू हैव टू मिटिगेट दोस रिस्क, अंडरस्टैंड कि उसके पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है. हमने सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचो. कस्टमर से हमेशा हम लोग कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बात करो, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बोलते हैं ना बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है. तो हमने वही किया. मैं कस्टमर से बात करता हूँ, मैं गवर्नमेंट से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, हाउ आई कैन हेल्प, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट. नेवर पैसा सबसे लास्ट में होता है और वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है. इफ यू सॉल्व प्रॉब्लम यू विल गेट मनी बाय डिफॉल्ट. सो डोंट वरी अबाउट, इफ यू पुट मनी फर्स्ट एवरीबॉडी विल ओके, पहले पैसे की बात हो रही, सोल्यूशन की बात नहीं हो रही. सोल्यूशन की बात करो. अप्रोच हमेशा सोल्यूशन की होनी चाहिए. सो कट शॉर्ट, कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइट आए. देन आई रियलाइज कि यार मैंने तो बहुत बड़ी चीज कर दी है. अब लेट्स ब्रिंग माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और AWS और फेसबुक एज अ कस्टमर, बिकॉज दे डोंट बिल्ड देयर डेटा सेंटर. जब भी अनाउंस करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इज बिल्डिंग देयर डेटा सेंटर, दे आर लीजिंग विद समवन लाइक अस. जो डेटा सेंटर ऑपरेटर होता है उससे किराए पे लेता है 10 साल 15 साल के लिए और वहां पे उसके सर्वर लगाता है और वो आपको देता है. तो डेटा सेंटर बिल्डिंग किराए पे जाती है, उसके अंदर हार्डवेयर सब माइक्रोसॉफ्ट लेके आता है और उसकी टीम मैनेज करती है और आपको क्लाउड देती है. तो हाउ क्लाउड कहाँ है? 4 बाउंड्री की वॉल में. क्लाउड कहीं ऊपर नहीं है, बाउंड्री की वॉल में. सो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट लीज करता है. माइक्रोसॉफ्ट से लेके गूगल सबके लिए चैलेंज था. Then I approached one of the guy who was working with Microsoft and he's partner now with RegBank. So उस टाइम पे मैं उसको बोला LinkedIn पे, I don't know anybody in the industry. I am a only startup in the industry where generally startups are not in this industry. Data center industry में startup होते ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको 100 करोड़ से कोई मिनिमम बिजनेस चलाना है तो स्टार्टअप के काम की चीज नहीं बोलते, वो एंटरप्राइज बोलते हैं उसको. सो इट्स नॉट अ स्टार्टअप. बट आई हैड नथिंग. आई सो accidentally enter into the space which not required a startup, which required an enterprise. Ambani, Adani और इन लोगों के लिए होता है वो. So but I did it. I got confident, and that day I felt sense of success. If you don't have money, but you can do wonders. So don't depend on money always. कि पैसा नहीं है इसलिए नहीं कर पाया. No, you can do it. You just need to figure it out. ये पजल है. पजल को सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है और दिमाग लगाओ, बात करो लोगों से, आइडिया शेयर करो. कोई कॉपी नहीं कर, किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हारा आइडिया एग्जीक्यूट करने का और इतनी जान लगाने का. जितनी जान तुम लगाओगे उससे ज्यादा कोई नहीं लगा सकता. अभी वी आर कॉम्पिटिंग विद अडानी, अंबानी, एवरीवन सिटिंग इन इंदौर. अच्छा लोकेशन होता है कि बॉम्बे जाऊंगा तो होगा, दिल्ली जाऊंगा, हो ही नहीं सकता. आप जहां हो वहां से करो. तो लोकेशन हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं दिमाग में कि ये क्लियरिटी नहीं है इसलिए बंदा आगे नहीं बढ़ता. सो forget about it, everything. Just focus on the solution side. So I met that guy, Microsoft guy, and I wrote over LinkedIn. So LinkedIn बहुत बड़ा tool है, whether you need a job or you need to start your product or services. LinkedIn पे जाओ, आज से ऐड करना चालू कर दो. I have got 20,000, 18,000 people in my LinkedIn. सारे relevant है. जब मैं फर्स्ट डे पे होस्टिंग बेचता था तब से लेके आज तक जितने भी मेरे प्रोडक्ट लाइन है सारे कस्टमर्स हैं. बिकॉज मीडिया में आप एड करने का पैसा है नहीं. और किसके लिए एड कर रहे हो? उन टारगेट ऑडियंस के लिए. वो टारगेट ऑडियंस ऑलरेडी मेरे लिंक्डइन पे, मैं पोस्ट करता हूँ, उनको पता चल जाता है कि ये नया प्रोडक्ट लेके आ गया. सो आई डोंट नीड टू एडवर्टाइज. आई डोंट नीड टू गिव लार्ज PR मनी बजट स्पेंड ऑन TV. डोंट नीड इट, right? So that's the best and smartest way to utilize the social media. LinkedIn is the best for professional side. Facebook, Instagram, these are also fine, but depend on your business. So use these tools as a marketing tool. Then you also get learn that what your industry is doing. Connect all the industry. Don't feel competition कुछ नहीं होता. It's all about your internal motivation. You don't need to lose hope. Continue persist करते जाओ, होता जाएगी. Success अपने आप मिलेगी. And then शुरू में काफी लोग नेगेटिव बोलते थे, ये क्या होता है डेटा सेंटर पे. आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि डेटा सेंटर जो 2000 करोड़ 5000 करोड़ लेके बैठा है ना, उसको वो एकदम ऐसे रहता है, ऊपर रहता है और सब नीचे समझता है, बोलता है इनको कुछ नहीं आता, हमें ये सब आता है. तो ऐसे लोगों ने फिर नेगेटिव बोलना भी चालू किया. एंड आई गॉट सम मोटिवेशन कि ठीक है ये पॉजिटिव है, बिकॉज दे आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट मी, इट मीन्स देयर इज अ इम्पैक्ट. सो
So but impact मतलब negative means वो तो कुछ नहीं है, इंदौर में है, छोटा सा ऑपरेशन चलाता है, कोई बड़ा नहीं है. Because I'm approaching the same customer जो 5,000 करोड़ की कंपनी वाला भी उसी कस्टमर को अप्रोच कर रहा है. They are targeting Google, I am also targeting Google. They are connected with Google CEO, I am also connected with Google CEO. मैं भी अपना प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ, वो भी भेज रहे हैं. उनको पता चलता है कि यार रेगबिंग भी इंडिया में जो अप्रोच कर रहे हैं, तो बोलते हैं तो बहुत छोटी कंपनी है, ये है नेगेटिव. बट फाइनली दैट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग. आई गॉट मोटिवेशन. जब भी लोग नेगेटिव बोलते हैं, मोटिवेशन बढ़ा लो अपना, बिकॉज उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अनटिल अनलेस तुम उसको ले रहे हो, तुम सपोर्ट कर रहे हो उसके बोलने को. सो I got Anil as my partner. He was a part of Microsoft global infrastructure. वो sign करता था contract Microsoft के behalf पे. And he heard me out all the story, what I did and all those things. So उसको पसंद आया कि यार तूने किया है इंदौर में. Can you do it in Mumbai? I said yes, I can replicate in Mumbai. Then I packed my bag. बॉम्बे चला गया 15 दिन के लिए. मैं वहाँ पे इंडस्ट्री सेक्रेटरी से बात करी. अभी एक गवर्नमेंट में आपके कनेक्शन आ गए. इन्हीं गवर्नमेंट को बोला है कि सर कैन यू कनेक्ट मी इन महाराष्ट्र. कितना सिंपल है सोचो. यहाँ पे कनेक्शन आपके बन गए बिकॉज यू आर लोकलाइट, सो यू गॉट अ प्रायोरिटी. यहाँ पे भी मेरे कोई कनेक्शन नहीं थे, ना एमपी में ना पॉलिटिकल साइड से. आई एम कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड वेयर नो कनेक्शन. मतलब दो गांव छोड़ के कोई जानता नहीं है ऐसा. तो आई गॉट अ कनेक्शन. मैंने उनको सर को बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को महाराष्ट्र में कनेक्ट कर दो. ही कनेक्टेड मी और ईमेल की ही इज अ गुड चैम्प, ही इज डूइंग गुड इन एमपी, ही वुड लाइक टू मीट यू. एक आईएएस ऑफिसर दूसरे आईएएस ऑफिसर के मिलता है. I got a connection. I meet him. I explain everything which I did in MP. He liked the idea. He said, "Okay, I can get you land." और फिर क्या था, मैं माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे को बोला कि यार I get it land in Maharashtra and similar concept. He liked it. He validated that idea. He came to India. He liked the idea and he left Microsoft and joined me as a partner. He said, now you are fine. I think I can left Microsoft. 12 साल की Microsoft की नौकरी छोड़ दी. I'm able to convince someone who is in Seattle, US citizen बन गया. Indian ही है by the way. But एक स्टेबल नौकरी, मतलब रिटायरमेंट की एज थी 50 साल. उसके बाद रिटायर हो रहा है. मतलब 10 साल और काम कर सकता था माइक्रोसॉफ्ट में. एक सीनियर लीडरशिप पोजीशन पे ऑलरेडी था, लीडरशिप पे था, मतलब सत्या नडेला से एक लेवल नीचे. तो वो बन ही जाता कुछ न कुछ फ्यूचर में. बट he got convinced. I am able to convince him to come to India and invest in this project. So he liked the idea. Then I got industry connect. I am able to solve big problem for my customers and I got a right team. So इसमें क्या होता है, चिकन एंड एग सिनेरियो बोलते हैं हमेशा कि यार पहले क्या आएगा. तुम कस्टमर लाओगे तो इन्वेस्टर मिलेगा, इन्वेस्टर होगा तो कस्टमर आएगा. तो आप तो फंस गए. आप कैसे सॉल्व करें इस पजल को. तो टीम चाहिए जो अट्रैक्ट करेगी कस्टमर्स को. कस्टमर साइड से मैं बंदा ही ले आया. एज अनिल, he become my partner in the company and he's having a 12 years experience in Microsoft. तो मैंने कस्टमर साइड की एक इक्वेशन सॉल्व करी, इन्वेस्टर अनलॉक हो गया. सो दैट्स द पजल सॉल्विंग एटीट्यूड I was telling you. So there is always puzzle. Equity dilute करना doesn't matter. उसने बोला मुझे इतनी चाहिए कंपनी में, कहा फाइन ले ले. My goal was not a small goal. It's a big goal and the industry is big. 20 साल तक भी काम करते रहोगे तो भी कम है. He liked the idea. We got the investor. This year we raised $850 million. Soon it will be in the news. And we solved the puzzle. Ultimately, now we are building across India: Chennai, Bombay, Pune, Noida, all other states. We are building our data center. Now, so how we solve this puzzle? So हमेशा positive रहो. एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कितना भी वर्स्ट हो. फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है जब आप कॉन्फिडेंस. तो फर्स्ट आपको जो पिच करना है ना, वो फैमिली को करना है. मतलब आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका घर है. मम्मी को और पापा को पिच करो कि देखो आई एम ट्राइंग टू डू दिस. वो बोलेंगे बेस्ड ऑन उनके एक्सपीरियंस, बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए. बट बोला मुझे करने दो, हुआ तो तुम्हारा जो बात है वो मान लूंगा, अगर नहीं हुआ तो गिव देम अ होप. होप बिकती है. सो the first pitch with the family, second pitch with the investor और team member को onboard करना भी एक convincing है. ये भी आर्ट धीरे धीरे सीख जाओगे. नहीं है गलतियां करोगे तो कोई बात नहीं. बहुत सारी ऐसी गलतियां भी होगी जो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, होगी गलतियां एंड दैट्स फाइन. बट मूव ऑन होना जल्दी जरूरी है. जैसे एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप पे तो मूव ऑन होना भी जरूरी है. तो फास्ट मूव ऑन. सो इसीलिए बोलते हैं कि आप बाहर निकलो,
चीजों से और बिजनेस को आगे बढ़ाओ, अपने फोकस अपने विजन की तरफ डायरेक्शन रखो. सो फाइनली वी आर हियर. अब क्या हो रहा है इंडस्ट्री में? इन 2020 ऑलरेडी एक डेटा सेंटर है जो हमने प्रेडिक्शन किए थे 600-700 मिलियन लोग ऑनलाइन हो गए आउट ऑफ 1.3 बिलियन. ये लोग डेटा कंज्यूम कर रहे हैं. डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडिया का डेटा इंडिया ही होना चाहिए. आप सोचो फेसबुक का डेटा सेंटर इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया वो सर्व करता है. इट शुड बी इन इंडिया. सो इंडिया में होगा तो क्या होगा? एक तो साइबर सिक्योरिटी जो रिस्क बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी. दूसरा, अगर डेटा सेंटर इंडिया में होंगे तो कनेक्टिविटी फास्ट होगी. पहले याद है ऐसे घूमता रहता था यूट्यूब या कोई भी मूवी देखते थे, अब नहीं घूमता है बिकॉज इनके डेटा सेंटर इंडिया में आ चुके हैं. तो कंटेंट अब इंडिया में है, तो इंडिया में इजी हो गया, फास्ट हो गया. अभी हम लोग बात कर पा रहे हैं. अगर ये जूम बाहर होता, आउटसाइड इंडिया होता, तो लेग आता डिस्कशन में, बातों में, सारी चीजों में. तो लेग नहीं आ रहा है. तो इसलिए डेटा इनको रखना है, इनकी मजबूरी है. डेटा प्रोटेक्शन आए नहीं आए, तो डेटा की ग्रोथ हो रही 300% ईयर ऑन ईयर. पहले जो आप नॉन जियो वर्ल्ड बोलता हूँ मैं उसको, कि जियो से पहले क्या हो रहा था कि हम लोग डेटा बंद करके बैठते थे मीटिंग में या कहीं पे भी डिस्कशन में, फिर डेटा ओपन करते थे. अब वो हैबिट नहीं है. अब तो फुल बिंदास चलने दो, 24 घंटे लाइव HD. सो दैट्स व्हाट वी आर कंज्यूमिंग. पहले 1 GB का डेटा कंज्यूम करते थे, अभी हम लोग एवरेज 10 से 20 से 25 से 100 GB का डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, GB का डेटा कंज्यूम कर रहे हैं. तो 100 GB एक एवरेज यूजर कर रहा है. अभी 600 मिलियन यूजर्स है. तो डेटा की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई. अब ग्रोथ हुई तो उससे क्या हुआ कि डेटा सेंटर्स को इंडिया में होना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि अगर डेटा इंडिया में नहीं है तो बाहर है. बाहर से इंडिया आएगा तो इंटरनेशनल बैंडविड्थ चार्ज लगेगा, तो इनको आना इंडिया में ही पड़ेगा. इसलिए जो हम 10 साल पहले सोचा था वो अब जाके विजिबल हो रहा है कि हाँ अब हम राइट इंडस्ट्री में. एंड इट टेक्स 10 years. लोग बोलते हैं अरे अपन कर लेते हैं, किसी को भी देख के कि नहीं ये आइडिया में दम है. ये देखो कि उसने जब Day 1 पे चालू करा था तब क्या सीन था, क्या सोचा था और क्या प्रॉब्लम सॉल्व. बहुत बार प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है 5 साल बाद. तो जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने चालू किया था वो प्रॉब्लम अब है नहीं, अब दूसरी प्रॉब्लम है. तो हर बार अपने को वापस सोचना पड़ता है कि अब नई प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में और नई प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. So connectivity was a problem, I told you. Electricity was a problem, I told you. Scalability was a problem, क्योंकि अब छोटा डेटा सेंटर फिर खत्म हो गए रेक, फिर बड़ा बनाओ, फिर बड़ा बनाओ, वही सारी चीजें वहां पे लाओ. तो स्केलेबिलिटी चाहिए थी, तो फिर हमने बड़े डेटा सेंटर बनाने चालू किए. तो ये डेटा सेंटर 10 गुना बड़े होंगे जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं. जितना पूरे इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी है अभी एग्जिस्ट करता है, उससे बड़ा हम एक जगह पे बना रहे हैं. तो आप स्केल समझो कि हम कितना बड़ा बना रहे हैं और कितना बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. बट इतना इजी नहीं था ना, क्योंकि समझना पड़ा. इट टुक 10 years. तो डेटा की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही है. और अभी हम जो डेटा बना रहे हैं वो यूजर जनरेटेड डेटा है, और यूजर और बिजनेस यूजर जनरेटेड डेटा 10x ग्रोथ पे है और बिजनेस डेटा 3x 4x ग्रोथ पे है. बट मशीन से जो डेटा जनरेट होगा, जो डिवाइसेस आने वाले हैं, ट्रिलियंस ऑफ डिवाइसेस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. घर में गूगल है, ओके गूगल है, अलेक्सा है, या वट एवर इट इज, एप्पल का प्रोडक्ट है, ये छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, ये 24 घंटे चलते रहते हैं, सेंस करते रहते हैं डेटा. फिर डिवाइसेस आ गए आपके टेम्परेचर के, डिवाइसेस आ गए स्मार्ट सिटी पोल के, वो सेंस करेंगे टेम्परेचर, लाइट बंद कर देंगे, चालू कर देंगे. सो ट्रिलियंस ऑफ डिवाइसेस इंप्लीमेंट हो गया, और ये डिवाइसेस 24/7 चलेंगे. So these divided will generate 50x more data than what we are generating right now. So ये इंडस्ट्री करीबन $1 trillion की इंडस्ट्री बनने वाली है. फिर AI मशीन लर्निंग आएगा. अभी हम लोग बायोमेट्रिक से कॉलेज में एंट्री करते हैं, पेरेंट्स को पता चल जाता है बच्चा आ गया. बट अब विजन लगेगा, कैमरा लग जाएगा, आपका थर्मल भी पता चल जाएगा, और आप आ गए हो ये आपके फैमिली को पता चल जाएगा, और आप कैसे हो वो भी पता चल जाएगा रियल टाइम. सो अब इस टाइप का वर्कलोड बढ़ेगा. तो ये डेटा सुनामी लेके आ रहा है. जो मशीन्स है वो डेटा सुनामी. इंडिया में 200 स्मार्ट सिटीज है, और हर स्मार्ट सिटी में बिलियंस ऑफ डिवाइसेस लगेंगे, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस. मतलब छोटे छोटे सेंसर लगेंगे हमारे इंडोर लोकेशंस पे, इंडोर डेटा सेंटर पे, इवन ऑल द डेटा सेंटर अक्रॉस इंडिया. हम लोग कम 5, 10, 20, 25 लोग रखते हैं. हमारे ह्यूमन लोग कम रहते हैं ऑपरेशन टीम, बिकॉज ऑपरेशनल एरर ज्यादा होती है. ह्यूमन एरर के कारण डेटा सेंटर बंद होता है, बाकी नहीं होता. तो हाउ टू रिड्यूस दैट साइज एंड ऑटोमेट योर डेटा सेंटर. तो हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा डिवाइस लगाते हैं. एक एरोप्लेन में कितने डिवाइस लगे रहते हैं, सिमिलरली एक डेटा सेंटर में उतना ही प्रिसिजन चाहिए, क्योंकि बंद हो गया
तो पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। लिंक फेल होता था, स्टेशन पे टिकट नहीं मिलता था। सिमिलरली अभी लिंक फेल हो जाए, इमेजिन करो लिंक फेल हो गई और आपको पता ही नहीं कि इंडिगो फ्लाई कहाँ से करेगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे उतरेगी, वो हवा में ही अटका हुआ है, उसको पता ही नहीं किधर उतरना है क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ऑल दोस थिंग आपको पता ही नहीं चेक इन कौन से काउंटर होगा क्योंकि सब कुछ डिजिटल है। तो ऐसे बहुत सारे केस हुए थे जब डेटा सेंटर डाउन हुआ था तो इकोनॉमी इम्पैक्ट। अभी सब हम लोग गूगल पे यूज कर रहे हैं, सोचो आप पे कर रहे हो और आपका लिंक डाउन, पैसा गया ही नहीं तो आपने तो हाथ में खाना है, दोगे कैसे पैसे? सो ये बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है और पैसे है ही नहीं। अभी हम जाते हैं तो पैसे तो वैसे ही नहीं ले जाते, गूगल पे और पेटीएम और बाकी चीजें यूज करते हैं, भीम, फोन पे, तो सब डिजिटल हो गया है। अब डिजिटल डाउन हो जाएगा तो क्या, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी डेटा सेंटर से हो रहा है। जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो चल रहा है, गाने सुन रहे हो, सावन इज आवर कस्टमर एंड सिमिलर ऑल दिस कस्टमर, जो भी आप सुनते हो ये कहाँ से आता है, डेटा सेंटर से उठ गया। एंड डेटा सेंटर जरूरी है, अपनी पार्ट का लाइफ है, बट ये बैक एंड पे होता है, सामने नहीं दिखता। बट जो भी डेटा आप कंज्यूम कर रहे हैं ये इंटरनेट से होके आता है और वो डेटा सेंटर से आता है, दैट इज फॉर श्योर। एंड इसलिए डेटा सेंटर की ग्रोथ बढ़ी रहेगी। इस इंडस्ट्री की बहुत सारी फंडामेंटल चैलेंजेस है। लोगों को लगता है रियल एस्टेट है तो इसमें हम लोग इजीली चालू कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रियल एस्टेट, इट्स अ टेक्नोलॉजी बिजनेस, बट रियल एस्टेट एक पार्ट है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बड़ा पार्ट है, एंड इलेक्ट्रिसिटी में सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज यू कांट ऑपरेट डेटा सेंटर विथ कोल जनरेटेड, बिकॉज कार्बन इमिशंस बहुत होता है। डेटा सेंटर एक सिटी के बराबर पावर कंज्यूम करेगा, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना 10x बड़ा होगा। अभी 10x बड़ा डेटा सेंटर का मतलब ये होता है कि आप एक सिटी के बराबर पावर कंज्यूम करोगे, और आप सिटी के बराबर पावर कंज्यूम करोगे मतलब कार्बन इमिशंस भी उतना होगा। तो रेक बैंक में हमारा जो सस्टेनेबिलिटी विजन है, डे 1 पे 100% क्लीन एनर्जी का टारगेट, और वो हम 70-80% तक अचीव कर चुके हैं। बाकी हम लोग कार्बन क्रेडिट, ऑफसेट और बाकी चीजें मिक्सचर करके कर रहे हैं। बट द आइडिया इज विजन कि हम कार्बन न्यूट्रल बनना पड़ेगा टू सेव द एनवायरमेंट, टू सेव आवर नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि अभी बड़ा डिसबैलेंस हो चुका है ऑलरेडी। एंड इसको रोकने के लिए, और डेटा के बिना हम रह नहीं सकते, इट्स अगेन अ क्रिटिकल सर्विस, क्योंकि इट्स हेल्प नेशंस इन दिस पेंडेमिक। जैसे अभी कोविड चल रहा है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, अगर डिजिटल इंडिया मूवमेंट नहीं होता, तो सोचो जितने गरीबों के घर में पैसे गए हैं थ्रू मोबाइल, वो कैसे गवर्नमेंट सरकार को पैसा कैसे देती, लोगों को पैसे कैसे देती सरकार जनता को, तो थ्रू पॉसिबल टू अडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसलिए ये गवर्नमेंट के काफी सपोर्ट में, मतलब मैं तो काफी सपोर्ट में हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, बट द पॉलिसीज, द फ्यूचर पॉलिसीज विच एक्चुअली हेल्प सिटीजन्स। तो अभी अगर ये नहीं होता तो इस टाइम पे, इस हार्ड टाइम पे हम लोग स्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। जैसे इंदौर में 50 लाख लोग रहते हैं, 50 में से हमारे डेली केसेस आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन से हॉस्पिटल में किसको करना है। ये टेक्नोलॉजी, पीछे पूरी टेक्नोलॉजी चल रही है। आई एम श्योर पुनीत इज आल्सो पार्ट ऑफ कोविड टीम। सो इसके पीछे अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हाउ यू कैन वर्क? सो टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, व्हेनेवर द स्केलेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, टेक्नोलॉजी इज मस्ट। बिना टेक्नोलॉजी के आप स्केलेबल नहीं कर सकते, न तो आइडिया को, न बिजनेस को, न ये सोसाइटी चैलेंजेस को। सो टेक्नोलॉजी चाहिए। और इंटरनेट किस लिए बना है? इंटरनेट बना ही है ग्लोबल प्रॉब्लम्स को कॉमन बनाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। अभी हम एंटरटेनमेंट करते हैं वो बात अलग है, बट अगर चाइना में वायरस आया, उन्होंने अलर्ट किया, जीनोम रिलीज किया, वो जीनोम पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट के पास चला गया और उन्होंने रिसर्च चालू कर दी सेम टाइम। जिस दवाई को 2-3 साल 4 साल लगते हैं, वो 6 महीने में दिख रही है। तो इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप कॉमन, आपके आइडियाज, चलो आपने नहीं इम्प्लीमेंट किया, आप वीडियो बनाओ, डाल दो यूट्यूब पे, 10 लोग नेगेटिव थम्स डाउन भी कर दे, दैट्स फाइन, बट किसी की तो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर ही देगा वीडियो। तो आप हमेशा पॉजिटिव रह के बोलो, बिंदास बोलो कि यार ये मेरा थॉट है, कोई छोटा बड़ा नहीं। एक स्टार्टअप, इसीलिए 17 साल 20 साल की एज में लोग बिलियनियर्स बन रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टाइम है, गवर्नमेंट सपोर्टिव है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, हम सेल्फ सस्टेनेबल, आत्मनिर्भर, ये सारी चीजें आपको सपोर्ट करती है कि यार मेरे को आज हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का धंधा करना है क्योंकि सर्वर लगेंगे, मुझे मोबाइल के फोन बनाने हैं, मुझे वीडियो कैमरास बनाने हैं क्योंकि लगेंगे हर किसी के पास में। तो मुझे एग्रीकल्चर सबसे बड़ा पीस है
कि आप देखो बहुत सारी इनोवेशन हो रहा है एग्रीकल्चर में, एआई मशीन लर्निंग यूज हो रही है, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा एआई मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट करो। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास में आपको जॉब ढूंढना नहीं है, लोग आप तक ढूंढेंगे और आपको आपके मन माफिक पैकेज देंगे। डू दोज इनोवेशन, गिटहब पे जाओ, अकाउंट बनाओ, वहां पे दिख रहा है जो एआई मशीन लर्निंग का, उस प्रोडक्ट को उठाओ, अपने यूज केस डालो और अपने लिंक्डइन पे शो कर दो, फिर देखो कमाल। आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ 10 से 20 जॉब के ऑफर आएंगे, पार्टनरशिप के ऑफर आएंगे, इन्वेस्टमेंट के ऑफर आएंगे। आप सॉल्व करो। इंडिया में बिलियंस अगर लोग हैं ना, तो बिलियंस प्रॉब्लम भी है, और उनको सॉल्व करोगे तो पैसा भी मिलेगा। अडॉप्ट एआई मशीन लर्निंग, बिकॉज अब डेटा बन चुका है, जितना अडॉप्शन टेक्निकली होना था वो हो गया है, अब नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। तो डेटा पे डिसीजन मेकिंग हो रही है कि मेरा जो नॉलेज है, मुझे अपना पूरा नॉलेज को एक फ्रेम में डालना है और उसके बेस पे डिसीजन लेना है कि यार मैं पिछले 10 डिसीजन नेगेटिव करे तो आगे के डिसीजन सही कैसे कर सकता हूँ, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो एआई मशीन लर्निंग का अडॉप्शन करो आप लोग, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करो, कॉलेज में ही करो, कॉलेज में ही लगा दो विजन कैमरा, और सारे बच्चों के फेशियल रिकग्निशन करो। Start with your college. Your college is the biggest playground for your innovations and for your startup ideas. Start with that. मैंने बोला friends, family ना, college तुम्हारा वही है, because you are giving 4 years to that college and college will support you back. I'm sure Puneet and their entire team is very supportive and very proactive, because ये इससे दिखता है, आप लोग ये टॉक करा रहे हो, स्टार्टअप्स को बुला रहे हो, उनकी स्टोरी शेयर करते हैं, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोएक्टिवनेस दैट योर मैनेजमेंट हैज कम अप विद आइडिया। आई एम श्योर ये सुनेंगे भी और ये आइडिया इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो एआई मशीन लर्निंग आई थिंक इज अ बिग थिंग। मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम लोग पीछे हैं, पूरा इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो उसमें फिगर इट आउट। अब लोगों ने क्या करा, अगले 10 साल से 20 साल रिसर्च, इनोवेशन, हेल्थ केयर, IoT, AI, मशीन लर्निंग, इस पे जाने वाले हैं, डीप लर्निंग पे जाने वाले हैं 10 से 20 साल। इसका मतलब जो प्रोफेसर रिसर्च में है, रिसर्च ड्रिवन एजुकेशन हो रहा है। अभी ऑक्सफोर्ड ने दवाई निकाली, किसने निकाली? इंस्टीट्यूट ने निकाली, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एआई मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम बन रहे हैं, वो पुराने पेपर किसी ने पब्लिश करे थे, उस पर बन रहे हैं। तो अब इनका टाइम आ गया, रिस्पेक्ट इनको वापस मिलेगी, सारे रिसर्च प्रोफेसर्स को जो किसी एक स्ट्रीम में, और साइंटिस्ट को उनका पूरा वापस मिलेगा। टेक्नोलॉजी वाले के पास क्या होता है, सिर्फ दिमाग होता है कि ये टेक्नोलॉजिकल कर लेता है, तो वो ओला बना देता है, उबर बना देता है, ई-कॉमर्स बना देता है, 10 चीजें कर देता है। बट वर्ल्ड को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना एक साइंटिस्ट कर सकता है, एक रिसर्च प्रोफेसर कर सकता है, एक स्टार्टअप कर सकता है जिसको प्रॉब्लम दिख रही है। एक नया लीप फ्रॉग करो। मी टू कर लिया लोगों ने, मी टू आपके लिए अच्छा है चालू करने के लिए, बट उसका इनोवेशन करोगे तो वो आपका खुद का प्रोडक्ट बनेगा, और वो डे 1 पे नहीं बन सकता है, एग्री विद इट, क्योंकि डे 1 पे इनोवेशन नहीं होते। इनोवेशन टेक्स टाइम एंड मनी एंड एफर्ट्स। तो आप कुछ भी चालू करो, कर दो, स्टार्ट करो सर्विस से, ग्रेजुअली अपने प्रोडक्ट पे जाओ। एक बार आपका साइकिल चालू हो जाए, सारी चीजें ठीक हो जाए, देन यू मूव ऑन टू दैट साइड। सो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। 1 बिलियन लोग इतना डेटा कंज्यूम करेंगे कि डेटा सेंटर्स लगेंगे, करीबन 10 से 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर इंडस्ट्री। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डेटा सेंटर। गवर्नमेंट की स्कीम्स है 3 ट्रिलियन टू 5 ट्रिलियन एआई मिशन, जिसमें आप लोग नए नए आइडियाज लाओ, प्रॉब्लम्स लाओ। एग्रीकल्चर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपने इंडिया में। आप सोचो ना, ड्रोन से दवाई छीटे खेतों में, क्या पॉसिबल है? 1 एकड़ 10 मिनट में 50 एकड़ हो गया काम। मेहनत कितनी बच गई और फसल भी बढ़ गई। वैसे ही सारे इक्विपमेंट अर्थ मूवर बनाओ, बैठ के बिंदास बनाओ, और किसानों की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। वेस्ट वाले जो लोग हैं वो वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोकल प्रॉब्लम हम ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये लोकल है। उनकी चीजें यहाँ लाओगे तो खिचड़ी बनेगी, और खिचड़ी बिकती नहीं है, मतलब अच्छे भाव नहीं मिलेंगे खिचड़ी के, बिकेगी जरूर जिसको भूख लगी है। सो लोकल प्रॉब्लम उठाओ, उसको सॉल्व करो, और हमेशा अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व फर्स्ट होना चाहिए, बाद में। जैसे हम लोग, अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं गवर्नमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, मेरी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। आई हैव नॉट आस्क्ड मनी फॉर गवर्नमेंट कि मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ, मुझे पैसा दो, नहीं, मैंने नहीं पूछा, पर मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे को एक ऐसी इंडस्ट्री मिल गई। अगर वो सपोर्ट उस दिन नहीं मिला होता तो क्या होता है ना, चीजें कुछ और होती, किसी और लेवल पे हम लोग बात कर रहे होते। सो ऑलवेज फॉलो दैट। So that's about my story. I think I took a lot of time, 40 minutes and more than that. Yeah, we love to listen to you, sir.
Yeah. So if you have any question, I would love to answer those questions. Yeah, thank you so much, sir. First of all, for sharing your thoughts and sharing your experience. It was really amazing to listen you at the way you have explained the startups and entrepreneurship and problem solving method. It was in a very simple format and very easy to understand. So it was really very amazing to listen to you, first of all. And next, there are a lot of questions and there are a lot of compliments in the chat box. You can see if you want to see Yeah. that the session is very informative and really very amazing. So moving further, if we go to the question answer round, a lot of Sure. questions came in the question answer tab too from the participant side. So I will start with the Arun Prem's question that we have skilled human resources. So why still many of our Indian companies store their data in the foreign data centers provider? Okay. So it's a good question, Arun. देखो, इंडिया का स्किल का आईटी में ना सिक्का चलता है. आप सुंदर पिचाई से लेके सत्या नडेला से लेके आईबीएम के डायरेक्टर से लेके सब इंडियन है और ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी चलाते हैं. सो इंडियन स्किल की रिस्पेक्ट ग्लोबली है. आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप इंडियन हो और आप चश्मा पहनो, गिग हो, मतलब आईटी वाले हो, तो आपकी इमेज बहुत अच्छी है. वैसे भी इंडियंस की इमेज अच्छी है, कंपेरेटिवली बहुत अच्छी है. तो आपको रिस्पेक्ट भी, इसीलिए तो हम लोग वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं और आईटी में काफी सक्सेसफुल है. और सारे वर्ल्ड के डेटा सेंटर्स, बाय द वे, हर डेटा सेंटर में एक और एक इंडियन मिल ही जाएगा. सीईओ सीटीओ लेवल पे, सेकंड नंबर 2 नंबर 3 पे एक इंडियन आराम से मिलेगा आपको. बिना इंडियन के इनकी कंपनी नहीं चल सकती. सो दैट इज देयर. अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि फॉरेन में डेटा सेंटर क्यों रखे हुए हैं. देखो, इंडियन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, पावर कनेक्टिविटी का चैलेंज है इंडिया में, और पॉलिसीज का, क्योंकि पॉलिसीज आल्सो टेक्स 6 महीने का टाइम लगता है परमिशन लेने करने में. और डेटा सेंटर इतना हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है. तो इन्वेस्टर भी सोचता है कि यार इसका ब्याज समझो, आप 12 महीने में मॉनिटरिंग पीरियड खत्म हो जाता है, यहाँ 20 महीने में डेटा सेंटर बिल्डिंग बन के रेडी हो रही है, तो आप 8 महीने पैसा कहाँ से दोगे? कस्टमर तो है नहीं आपके पास में. तो इसलिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस थे, बट अब वो सॉल्व हो गए हैं सिंस दिस प्रॉब्लम्स आर मिटिगेटेड. एंड नाउ because of supportive environment of the government, data protection law is coming up. 600-700 मिलियन लोग हम इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं रात दिन. अब इन लोगों को नीड फील हो रही है. We are in touch with all the customers and they are aggressively looking India like anything. So in another 5 years you'll see MP में भी बहुत सारे डेटा सेंटर वाले आ जाएंगे. मतलब Google, Microsoft will set up their data center in MP. So because MP is best fit, सेंट्रल लोकेशन है, पूरे इंडिया का डेटा साउथ से नॉर्थ इंदौर होके जाता है. तो वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द स्टेट्स हैव द अपॉर्चुनिटी. पावर सस्ती होना चाहिए, जो कि एमपी में है. ऑल द बेनिफिट्स व्हिच वी हैव, not only MP but India में है. These guys will come now. So I hope I answered this. Yeah. These products are coming. Arun, I hope you have got your answer, and with very detail you have got your answer. Next question is from Shivangi Tripathi. The question is too big, so I will just read it out. That sir, आपकी जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए होंगे जिससे आपने दूर किए होंगे, बट एट टाइम सम हमारा माइंड जो है वो इट स्टॉप्स वर्किंग एंड हम उससे हारने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगातार फेलियर हमें बैक ऑफ करने पे फोर्स करते हैं. तो क्या आपकी जर्नी में कभी ऐसा सिचुएशन फेस किया है कि इस तरह से हुआ हो? So काफी मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, लाइक जैक मा. 10 बार उसने ट्राई किया तब जाके उसको हार्वर्ड का मिला. कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है. सिमिलरली फेल्यूर तो हर किसी के लाइफ में बाय डिफॉल्ट है, एंड फेल्यूर नहीं हो तो सक्सेस का मजा ही नहीं आएगा. आपको करते से ही हो जाएगा, आपको लगेगा यार क्या कुछ भी तो नहीं किया है, कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए जिसमें मजा आए. मजा का मतलब है कि फेल्यूर मिले. फेल्यूर के चांसेस 90% हो, तो फेल्यूर होना जरूरी है. और जब फेल्यूर हुआ है तब मोटिवेशन डबल हुआ है. किसने नहीं बोला है किसी ने, तो अब तो मैं करके ज्यादा अच्छे से दिखाऊंगा, समथिंग लाइक दैट. इंटरनल मोटिवेशन आता है. हमेशा क्रिएटिविटी आपको इस फेल्यूर और उससे बचाइए. अच्छा, फेल्यूर क्या होता है?
फ्रेंड्स एंड फैमिली के, फेल हो जाऊंगा तो ये बोल देगा, वो बोल देगा, क्योंकि मेरिट वालों की लिस्ट छपती है, पेपर में नाम आता है, बाकी का तो नहीं छपता, बट वो भी तो स्ट्रगलर है, वो भी तो पहुंचे हैं वहां पे। तो डोंट रीड दोज न्यूज़पेपर। सो आइडिया इज अंदर से आना चाहिए। हम अपने आप को फेल मत मानो, फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर लाइफ में। दूसरा, अपने ब्रेन को बोलो क्रिएटिविटी, जिसमें आप नई चीज करो, क्रिएटिविटी करो। फॉर सम टाइम इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट द सॉल्यूशन, यू ट्राइड योर बेस्ट, कोई बात नहीं, किसी और चीज को क्रिएटिविटी में एंगेज हो जाओ, कोई क्लासेस कर लो, या मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया कर लेता हूँ कि यार चलो ये क्लास कर लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास आजकल बहुत चल रही है, कुछ नया कभी भी ऐसा आता है तो 1 घंटे वो दे देता हूँ, तो और रिफ्रेश हो जाता है। एंटरप्रेन्योर से मिलो, स्टार्टअप आपकी इंडस्ट्री की इवेंट्स अटेंड करो। सबसे बेस्ट और बड़ी सक्सेस है मेरी, मैं जो पीछे मानता हूँ, मैं इंडस्ट्री की सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता हूँ। उसका थॉट ही है कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड कनेक्शन एंड यू विल मीट पीपल, एंड पीपल जब फेस टू फेस होते हैं तो पहचानते हैं, और वो अपने आप में एक सेम, हम रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं, सामने वाला पहचानता है अपने को, अपने कैंटीन में भी जाते हैं तो वो हेलो करता है, अलग से एक मजे होते हैं उस चीज के। तो ये सारी चीजें आप करते जाओ, नई नई क्रिएटिविटी डेवलप करो, एंड आई एम श्योर आप ओवरकम कर लोगे। और फेल्यूर को फेल्यूर मत मानो, उसको लर्निंग मानो। सबसे बड़ी चीज है, फेल्यूर इज नॉट अ फेल्यूर, इट्स इम्प्रोवाइजिंग योर स्किल से। फेल्यूर इज अपॉर्चुनिटी। एक और क्वेश्चन है सर, मैत्री दत्ता का चैट बॉक्स में आया है, दैट एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट हाउ कैन वी डेवलप दिस स्किल and how to spread our thoughts to those rural class people as new technology are being developed, so how can we inspire people about it? So I think 2 चीजें हैं, एजुकेशन अवेयरनेस, जो कि डिजिटल डिवाइड है अपनी कंट्री में, कुछ लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन, एक के पास इन्फॉर्मेशन है, दूसरे के पास नहीं है। आपने वीडियो देखा, यू गॉट अवेयरनेस, बट वो दूसरे के पास नहीं है, तो आप उसको वीडियो शेयर करो। व्हाट्सएप शेयरिंग होती है, अच्छे अच्छे वीडियोस भेजो, 5 लोगों को भेजो कि यार ये खेती कर दो, मूसली की खेती करो, मीठी तुलसी की खेती करो, आप ड्रोन से छिड़काव करो, ड्रोन बनाने के वीडियो भेजो कि ये कंपोनेंट लाएगा, घर में 500 रुपए में बन जाएगा, इस पे एक पाइप बांध और चला, इसको ऐसे रिमोट से चलाना है। हेल्प पीपल, यू लव इट एंड दे विल अप्रिशिएट इट एंड यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड योर वे। सो आई थिंक अगर गांव में रूरल लोगों की किसी की भी हेल्प करना है, तो हेल्प का सही तरीका है उनको एजुकेट, उनको सेल्फ अपलिफ्ट करो। तो उसकी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है एजुकेशन और अवेयरनेस, उसको सॉल्व करने के लिए उनको वीडियोस फॉरवर्ड करो, उनको बोलो कि ये देखो, आप टिकटॉक भी है और एजुकेशनल वीडियो भी है, तो टिकटॉक आधा घंटा और एजुकेशनल वीडियो 4 घंटे, ऐसा होना चाहिए कॉम्बिनेशन। जबकि उल्टा होता है। अब तो क्या टिकटॉक बैन हो गया। हाँ, टिकटॉक नहीं, अपने इंडियन ऐप यूज करो। तो सर इट वाज बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे, जो भी आपने अपने मोटिवेशनल आपका पूरा जो मेरे ख्याल से सेशन है वो मोटिवेशनल है, और मुझसे लोग जो है वो अभी से यूट्यूब का लिंक मांग रहे हैं कि आपके सेशन का यूट्यूब लिंक जो है वो हमें जरूर दीजिएगा। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है सर आपके साथ, और एक एंटरप्रेन्योर के साथ हमेशा बात करना अमेजिंग ही रहता है, बिकॉज दे लर्न फ्रॉम द फेलियर एज यू सेड, एंड फेलियर को फेलियर नहीं मानना, ये एक बहुत बड़ा इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब वो चाहिए, मन चाहिए कि फेलियर को फेलियर ना मानना। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हैं, तो मैं स्टूडेंट्स की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट स्किल्स वन शुड एक्वायर टू गेट इनटू दिस फील्ड ऑफ डेटा बैंक? सो आई थिंक डेटा सेंटर्स में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ये सारी चीजें होती है। डेटा सेंटर्स पे आप, अगर डेटा सेंटर इंडस्ट्री बहुत ही यूनिक है, हर यूनिक इंडस्ट्री, अगर आप एक यूनिक स्किल सेट को एक्वायर करोगे तो रिस्क तो है, बट चांसेस आपके ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यूनिक इंडस्ट्री है। तो डेटा सेंटर रिलेटेड कोर्स करें और एक्सपर्टीज अपनी बनाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर मेशंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने डेटा सेंटर प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। तो आई थिंक उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, और इसके डायरेक्शन में किसी भी एआई, मशीन लर्निंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप उस इंडस्ट्री की तरफ अपना स्किल सेट डेवलप करें, फिगर इट आउट करें, आपने कोर्स बनाएं। और मैं भी इंस्टीट्यूट्स को भी वही बोलता हूँ कि आप है ना कस्टमाइज कोर्स बनाएं, कि एआई मशीन लर्निंग के लिए आज से अडॉप्ट कर लो, बैटरी के लिए भाई लिथियम आयन बैटरी, ऑटोमेटेड व्हीकल, ये नई नई फील्ड आ रही है, 4-5 विंग्स पार्टनरशिप करो ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, साइबर सिक्योरिटी की,
इसराइल की आजकल ग्लोबल सारी यूनिवर्सिटीज पार्टनरशिप के लिए ओपन है, और हम जैसे ऑपरेटर और डेटा सेंटर ऑपरेटर और बड़ी जो गूगल और इन लोगों को सबको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। तो आप रिलेवेंट दोगे तो मजा ज्यादा आएगा, क्योंकि क्या होता है हमारा टाइम भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो उन चीजों को अडॉप्ट करो, और आई एम श्योर आई विल हेल्प एंड कनेक्ट विद इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन टू मॉडर्न ग्रुप, एंड वो मैं कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली, मेरे ख्याल से सारे जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने कनेक्ट किया है वो श्योरली अब इस पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि डेटा एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होगा मेरे ख्याल से, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस है या स्टार्टअप्स हैं जो कहीं ना कहीं एंड हो सकते हैं, लेकिन डेटा एक ऐसी चीज है आज के सिनेरियो में जो कभी खत्म नहीं होगा, और इसका जो बोल सकते हैं इसका बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा मेरे ख्याल से। हो सकता है कि नए नए फेजेस आते जाएं, लेकिन खत्म नहीं हो पाएगा ये। तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करूंगी कि इस तरह के जो है कुछ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स लेकर आए, और इनोवेटिव, क्योंकि हमारा इंक्यूबेशन सेंटर भी है एंड वी डू गवर्नमेंट फंडिंग फॉर द स्टार्टअप्स, तो हम लोग आप अप्रिशिएट करो इन लोगों को, और आप उन चीजों में फोकस कराओ, बिकॉज these are the future CEOs of the large companies and their own companies, and सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आप एक छोटा प्रोडक्ट बनाओ और उसको स्केल करो, डबल डाउन करो। भाई एक प्रोडक्ट बनाया, उसको इतना सस्ता कर दो कि पूरी दुनिया में आपसे सस्ता नहीं बेच पाएगा। इतना इफिशिएंसी, इतना उसकी कॉस्ट और इफिशिएंसी बढ़ाओ, कॉस्ट सस्ता करो, तभी मजा आएगा। और यूट्यूब पूरा समंदर है नॉलेज का, अच्छे इंस्टीट्यूट्स, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, सारे डेटा वहाँ पे डला हुआ है। आप पढ़ो, जाओ, रिलेवेंट पढ़ो बस, और फोकस होके करो। जी, so once again sir, thank you so much for joining us. अभी हमारे साथ 140 participants हैं, those who are listening to throughout the session, and they are appreciating your session like anything. It was really very motivational, and as I said, they are asking for the YouTube link too, so we will definitely share the YouTube link too. And on behalf of entire Modern Family, on behalf of our chairman Shri Anil Kariaji, vice chairman Shri Shantanu Kariaji, and our group director Dr. Puneet Kumar Diyajiji, I, Arpita Patel, head media and corporate communication, extend heartfelt thanks to you sir for joining us in this session and motivating us, inspiring us, and giving such an enlightenful knowledge about the data centers and upcoming future of data center. So once again, I extend my thanks to you, sir. I also thank all the participants, those who have joined us throughout the session, and those who are asking questions and repeatedly, connecting us in our Modern Talk hashtag Modern Talk webinar series. On Monday, we also have a session. I have shared the link in the chat box for the same. So please stay tuned to hashtag Modern Talk, and you will get the feedback link in the chat box, as well as you will get after the host will end the session. So once again, thank you so much, sir. Thank you for joining us. Very much. Best wishes for all the students, yes. And wish you best of luck. Thank you very much. Thank you, Puneet ji. Bye. Thank you so much.